السلام علیکم۔ دما کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ آخری دم تک ساتھ نہیں چھوڑتا، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ قانون مفرد اعضاء نے یہ بات ایسے ثابت کر دی ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں نے ہزاروں بلکہ لاکھوں مریضوں کا علاج کیا ہے، دما کے مریضوں کا۔ تو یہ کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے اگر اس کو سمجھ لیا جائے کہ یہ کس مزاج میں ہے۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹھنڈا مزاج میں جو دمہ ہوتا ہے، گرم مزاج میں یعنی گرمی والا دمہ اور خشکی والا دمہ، ان کے تمام کے بارے میں انشاءاللہ ٹھوس وجہ اور اصول علاج آپ کو بتائیں گے، اور آخر میں آپ کو ایمرجنسی دمہ کا علاج، اور اگر آپ کی بلغم جم چکی ہے تو اس کو خارج کرنے کا ایمرجنسی انشاءاللہ علاج بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے ہے، اگر اس کو سمجھ لیا جائے کہ یہ کس مزاج میں ہے تو اس کا علاج اتنا مشکل نہیں رہتا۔ سب سے پہلے تحریک، 3 مزاج ہوتے ہیں انسانی جسم میں کل۔ سب سے پہلا ٹھنڈا مزاج، گرم مزاج اور خشک مزاج، ان تینوں میں سے کسی ایک میں بھی ایک وقت میں دمہ ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ 3 مزاج ہے، تینوں میں سے اگر کسی کو سمجھ لیا جائے، دمے کو سمجھ لیا جائے کہ کس مزاج میں، تو انشاءاللہ اس کا علاج کرنا مشکل نہیں۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہم آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تیزابی یعنی عضلاتی مزاج میں، اگر میں خشکی کہوں تو یہ بھی ٹھیک ہوگا، خشکی والے مزاج میں دمہ، ٹھیک ہے۔ اس میں چند علامتیں آپ سماعت فرمائیں تھوڑی سی۔ اس میں پھیپھڑوں کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، تیز تیز اس مریض کو سانس آتا ہے، جس کو تیزابی یعنی خشکی والا دمہ ہوتا ہے، اور پیٹ میں ہوا بہت زیادہ بھری ہوتی ہے اور پیٹ کسا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو قبض بھری ہوتی ہے، نبض اس کی بہت تیز چلے گی۔ اگر آپ ہاتھ کی اس کی نبض پر اگر انگلی رکھے تو 1 منٹ میں 109 تا 110 فی منٹ چلے گی۔ بلغم بہت کم آتی ہے، ایسے جو مریض ہوتا ہے تیزابیت والا، اس کو بلغم تو آتی ہی نہیں، اگر آئے گی تو کھانس کھانس کے بہت کم آئے گی، ٹھیک ہے، یعنی بلغم اس کو آتی ہی نہیں، اگر آئے گی تو جھاگ کے ساتھ تھوڑی سی صبح کے وقت ہی آئے گی۔ اس میں دل بھرتا ہے، اور بعض اوقات 120، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کہ 120 یا 150 فی منٹ جو اس کی رفتار دل کی وہ ہو جاتی ہے، دل کے دھڑکنے کی رفتار ہے۔ اس کو اختلاج قلب کہتے ہیں، یہ علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اب علاج سماعت فرمائیں آپ۔ کیونکہ اس جو عضلاتی مزاج ہے، عضلاتی یعنی خشکی والا مزاج ہے، قانون مفرد اعضاء کی زبان میں اس کا نام عضلاتی ہے، لیکن سادہ الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس لیے اس کا مزاج خشکی ہے۔ خشکی کی وجہ سے یہ جو دمہ ہوا ہے، آپ کو میں چند علامتیں ذکر کر دی ہے، اب اس کا علاج سن لیں آپ۔ چونکہ 4 ملین جو ہوتا ہے وہ حرارت کا ایک حرارت والا نسخہ ہے، جو جگر میں حرارت پیدا کرتا ہے، جو جگر میں گرمی پیدا کرتا ہے، لیکن اس مزاج میں دمہ والے مریض میں حرارت بالکل نہیں ہوتی، جگر بالکل اس کا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، کام کرتا ہی نہیں، گرمی اس کے جسم میں بہت کم ہوتی ہے، یعنی جگر چلتا ہی نہیں۔ تو اس صورت میں ہمیں 4 ملین اس کو نہیں دیں گے، بلکہ اس کے لیے بہت اونچے درجے کا ایک نسخہ دینا پڑے گا۔ وہ نسخہ آپ نوٹ فرما لیں، آپ نسخہ نوٹ فرما لیں، میں سکرین پر اس کو شو نہیں کروں گا، اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کشتہ شنگرف لے لے آپ 20 گرام، اور کشتہ باراسنگا 20 گرام لے لے، ہمدردی یا کرشی والوں کا، یہ کسی بھی آپ کو پنسار سٹور سے ملے گا یا آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائے گا، کیونکہ یہ دونوں کمپنیاں اچھی ہیں۔ اگر اور کمپنی کا یا اور کسی کا یہ جو کشتہ ہے وہ استعمال کیا جائے تو اس میں ملاوٹ کا خدشہ ہوتا ہے، چونا وغیرہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کا مکمل فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سرخ رائی لینی ہے آپ نے 40 گرام، یہ آپ نے تینوں چیزیں لے لی، کشتہ باراسنگا، کشتہ شنگرف، دونوں 20-20 گرام، اور اس کے علاوہ سرخ رائی 40 گرام۔ آپ اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آپ سماعت فرمائیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے 1 رتی یا کالی مرچ کے جتنی آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے ان کے وزن کے برابر، یعنی اگر کسی کا وزن 60 گرام ہے یعنی 1.5 من ہے تو اس کو آپ 500 ملی والے کیپسول دے، کیونکہ یہ نسخہ بہت اونچے درجے کا ہے تو اس کے لیے اس کو وزن کے حساب سے دینا پڑے گا، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اگر کسی کا وزن 100 کلو ہے تو اس کو آپ 1000 ملی والا کیپسول بھر کر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دینے کا طریقہ یہی ہے کہ 3 ٹائم صبح، دوپہر، شام دینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے دیسی اجوائن لینی ہے اور پودینہ لینا ہے، برابر وزن ان کو پیس کر
सफूफ बना लेना है। और आधी चम्मच से 1 चम्मच, ठीक है, आधी चम्मच काफ़ी है। दोबारा समात फरमाएं, अजवाइन और पुदीना दोनों को सफूफ बना लेना है बारीक करके। तो इनकी मदद से आधी चम्मच ये सफूफ की लेनी है और 1 प्याली आपने चाय की बना लेनी है, यानी प्याली में पानी डालकर उबाला देकर उसमें गुड़ वगैरह मिला ले आप, तो ये कहवा बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको पका ले, जब आधी प्याली रह जाए तो आप इस्तेमाल करें। तो आप देखेंगे कि इसको जो भंसना शुरू हो जाएगा और चंद दिनों में उसका दमा जो है वो उजलाती दमा है, यानी खुश्की की वजह से दमा हो गया है, वो मुस्तकिल तौर पर अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक हो जाएगा और उसको ऐसे ही लगेगा जैसे दमा हुआ ही नहीं। ये बड़ा आला दर्जे का नुस्खा है। अब दूसरा नुस्खा नोट फरमा लें आप, ये है गर्मी वाला नुस्खा। गर्मी की वजह से जो दमा हो जाता है, गर्मी की शिद्दत की वजह से वो दमा कैसा होता है, इसकी चंद आप अलामतें समात फरमाएं। पहले इसको दमा कल्बी भी कहते हैं क्योंकि दिल की बीमारियों से होता है और बार बार हमने बताया है कि इसमें ज़ुबान का रंग, अलामतें आप जो है पहले भी कई मरतबा हमने अर्ज़ की है कि इसमें ज़ुबान का जो रंग है बिल्कुल सुर्ख होता है, यानी ज़ुबान पर बिल्कुल मैली तह वगैरह नहीं होती। पेशाब बहुत ज़्यादा जर्द होता है। उसका ब्लड प्रेशर, उस मरीज़ का जिसको गर्मी वाला दमा होगा, उस मरीज़ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही रहेगा। गुर्दों में सोजिश हो जाती है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तमाम अलामतें गर्मी की है। तो इसमें फेफड़ों में तहलील हो जाती है। तहलील यानी वो बिल्कुल काम नहीं करते। एक तो होता है तस्कीन, तस्कीन का मतलब बिल्कुल काम नहीं करते, लेकिन तहलील का मतलब है कि वो कमज़ोर हो गए हैं, बिल्कुल काम अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल थोड़ा काम कर रहे हैं। फेफड़े ढीले पड़ जाते हैं और अपनी असल हालत से नीचे चले जाते हैं। ठीक है, ज़ुआफ़ कल्ब हो जाता है, यानी दिल कमज़ोर हो जाता है। दिल इसमें बड़ा घबराता है क्योंकि गर्मी है। और दिल का डूब जाना और दिल का घबराना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। दिल का डूब जाना ये और अलामत है और घबराना ये और अलामत है। ठीक है, घबराहट गर्मी की वजह से होती है। बंदा कह सकता है कि मुझे हवा दो, मतलब जब गर्मी इंसान को होती है या गर्मी वाले मिजाज में जिस शख्स को दमा होगा या जिसके जिस्म में गर्मी होगी, वो कहेगा कि मुझे हवा दो, पंखा चलाओ, और आंखों में जलन हो जाती है। पेशाब भी जलन के साथ आता है। ठीक है, और इसी तरह बलगम जर्द होती है, उसको आसानी के साथ खारिज हो जाती है, जमी हुई नहीं होती और पकी हुई होती है। ठीक है, और जो इसके लिए आसानी के साथ खारिज हो जाती है। तो इसके लिए एक आप छोटा सा नुस्खा समात फरमाएं। इसके लिए है 6 तिर्याक और 1 मुलय्यन। ये नुस्खा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से जो गर्मी की वजह से दमा हुआ है, मैंने आपको अलामतें ज़िक्र कर दी है। अगर आपको पता चल जाए कि मुझे इन अलामतें ही पेश आ रही है, यही अलामतें, और आपको दमा भी है, तो फिर आपने 6 तिर्याक और 1 मुलय्यन इस्तेमाल करना है। ये फार्माकोपिया से इस्तेमाल किया गया नुस्खा है जो कि कानून मुफरदा के माहिर तबीब हज़रत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने तजवीज़ फरमाया है। 6 तिर्याक आप नोट फरमा लें। आक का दूध लेना है आपने 10 ग्राम और 150 ग्राम आपने हल्दी लेनी है। ठीक है, अब आक का दूध क्या चीज़ है, ये आप किसी भी गांव में चले जाएं या किसी भी जहां पर मिट्टी या कच्ची सड़कें वगैरह ज़्यादा होगी, तो सड़कों के बिल्कुल किनारे पर एक छोटा सा बोहर की तरह दिखाई देने वाला पौधा होता है। बोहर, बोहर समझते हैं ना, बोहर जिसे पंजाबी में कहते हैं कि बोहर का दरख्त, बोहर की तरह दिखाई देने वाला पौधा होता है, तो उसको आक कहते हैं। ठीक है, उसको बरगे मदार भी कहा जाता है। 10 ग्राम आपने आक का दूध और 150 ग्राम आपने हल्दी, दोनों को आपने मिक्स करके थोड़ा सा भून लेना है, क्योंकि जो आक का दूध होता है इसकी तसीर ख़त्म हो जाएगी। तसीर यानी जब इसको आप भूनेंगे तो थोड़ा सा धुआं निकलेगा, उस धुएं से आपने बचना है। तो जब ये आप थोड़ा सा सफूफ, मतलब आपने थोड़ा सा इसको भूना, भूनने के बाद जब इसका धुआं निकल गया, भूनना क्या है कि आप किसी भी कढ़ाई में डाल लें, थोड़ी सी आग नीचे चला दें और दोनों चीज़ को पहले मिक्स करें आपस में और फिर उसमें कढ़ाई में डालकर इसको भून लें। ठीक है, तकरीबन 1-2 मिनट आपने भूनना है। उसके बाद आपने फ़ौरन इसको भूनने के बाद गूंद मिला लेनी है। ठीक है, ताकि फौरी गूंद मिलाने का फ़ायदा ये होगा कि ताकि फौरी जिस्म में हल ना हो। अगर गूंद ना मिलाई जाए तो अगर वैसे ही ये जो नुस्खा है इस्तेमाल कर लिया जाए तो चूँकि ये इंतहाई ठंडा होता है और जिस्म में पानी की ज़्यादती करेगा, यानी चूँकि गर्मी ख़त्म करनी है, इसलिए ये नुस्खा हमने तजवीज़ फरमाया है। तो इसलिए आपने इसमें अगर गूंद मिलाएंगे तो ये थोड़ा सा जैसे गोली बनती है
छोटी सी 2 दवाई की गोलियां बनती है, ठीक है, उस तरह की ये गोली बनेगी। तो अब जब आप खाएंगे तो इसको जिसको घुलने में, मिक्स होने में तकरीबन थोड़ा सा वक्त लगेगा जिस्म के अंदर। तो इस तरह उल्टी वगैरह नहीं आएगी, बल्कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा। उसके अलावा जो हमारा अगला नुस्खा है वो भी हम आपको बता देते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप थोड़ी सी इसकी नुस्खे की जो तफसीर है वो सुन ले आप। इस नुस्खा को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इस नुस्खा से गर्मी की शिद्दत ख़त्म होगी। यानी आपने ये मिसाल सुनी होगी, ये आपने तजर्बा भी प्रैक्टिकल किया होगा कि जहाँ पर गर्मी होती है अगर थोड़ा सा पानी मिला दिया जाए या आग में पानी डाल दिया जाए तो आग ख़त्म होती है। आग के ख़त्म होने की वजह से उसकी जो गर्मी की शिद्दत होती है, गर्मी हरारत होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सफ़ूफ भी सोजिश ख़त्म करेगा, जिगर की उसकी जो हरारत है उसको ख़त्म करेगा या कम करेगा, ठीक है। उसके अलावा आपको मैं एक और नुस्खा तजवीज़ फरमा देता हूँ। अगर आपसे ये आग का दूध आपको नहीं मिलता तो फिर आपने क्या करना है। बाज़ औक़ात होता है कि आग का दूध 10 ग्राम जो काफ़ी मिकदार होती है, इसको मिलना नामुश्किल होता है। तो फिर आपने ये करना है कि आपने लेनी है हल्दी 70 ग्राम और रीठे का छिलका 30 ग्राम, ठीक है। हल्दी 70 ग्राम और रीठे का छिलका 30 ग्राम। ये उस सूरत में आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे जब आपको 6 तरियाक यानी आग का दूध और हल्दी वाला नुस्खा आप नहीं बना सकते, तो फिर आप हल्दी 170 ग्राम और रीठे का छिलका 30 ग्राम, ठीक है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं नुस्खा। इसको आपने बारीक कर लेना है और इसको सफ़ूफ बना लेना है। पानी में मिलाकर इसको अगर थोड़ा सा गूंदे तो गोलियां बननी शुरू हो जाएगी। और इसमें गोलियां बना ले, यानी जब थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो ये थोड़ा सा आटे की तरह हो जाएगा। सफ़ूफ बनाने के बाद आपने पानी मिलाना है, गोलियां बननी शुरू हो जाएगी। इसका भी वही फ़ायदा होगा जो 6 तरियाक का फ़ायदा होना है। यानी इसमें इस नुस्खे ने जिसम में पानी की मिकदार ज़्यादा कर देनी है, गर्मी की शिद्दत को कम करना है, सोजिश ख़त्म करनी है। काली मिर्च से थोड़ी सी बड़ी गोली बनानी है आपने, ठीक है। काली मिर्च जो छोटी सी होती है उससे थोड़ी सी बड़ी गोली आपने बना लेनी है। सुबह दोपहर शाम एक गोली इस्तेमाल करनी है। तो अल्लाह पाक के फजल करम से आपका जो गर्मी की वजह से दमा हुआ है इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ज़ाहिरी बात है, ये जो नुस्खा है ये जिस्म में तरी पैदा करेगा, पानी ठंडा यानी पानी पैदा करेगा, गर्मी की शिद्दत को कम करेगा, सोजिश ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। दमा कल्बी भी इससे ठीक हो जाएगी। तो आपने जवार शाही इस भी 1-1 चम्मच साथ साथ ही इस्तेमाल कर लेनी है इससे, ठीक है। यानी आपने अगर ये नुस्खा 3 टाइम इस्तेमाल किया है तो इस नुस्खा को इस्तेमाल करने के 1 घंटे बाद जवार शाही 1-1 चम्मच आपने इस्तेमाल करनी है 1-1 घंटा बाद। अब आखिरी जो दमा है वो सबसे ज़्यादा दमा है, सबसे ज़्यादा दमा होता ही असाबी है। तो उसके लिए आप छोटा सा नुस्खा इस्तेमाल कर, मैं पहले थोड़ी सी अलामतें ज़िक्र करता हूँ, मैं फिर आपको उसका इलाज भी बता देता हूँ। इसमें कसरत से पेशाब आता है। तमाम अलामतें ज़्यादातर लोगों को असाबी दमा ही होता है। हकीकत में यही बात है कि ज़्यादातर लोगों को असाबी दमा ही होता है, क्योंकि हमारे जो मुल्क है, हमारी जो ग़िज़ाएँ है वो गर्म रही नहीं। और जो गर्म ग़िज़ाएँ हैं मसलन बकरे का गोश्त और देसी घी वगैरह, ये बहुत गर्म ग़िज़ाएँ हैं, इनका मिजाज गर्म है तो ये काफ़ी महंगी है, इसलिए लोग गर्म ग़िज़ा कम ही इस्तेमाल करते हैं। तो ज़्यादातर जो अक्सरियत है वो उनको ठंडा यानी असाबी दमा ही होता है, ठंडा दमा होता है। और हमारे हकीम हज़रात जब बहुत से हुक्म हज़रात इकट्ठे बैठे तो ये तय पाया गया कि असाबी दमा है तो उसका इलाज क्या हो सकता है। तो फिर सब में यही बात सामने आई, यही बात मुश्तरका तौर पर सामने आई कि उसका इलाज तुरशी से किया जाए, यानी कोई ना कोई खट्टी चीज़ या तेज़ाबी चीज़ दी जाए। क्योंकि ये हमारा कानून है जो कि कानून मुफरद अज़ा ने मुतारफ़ फरमाया है कि असाब को उजला से यानी तरी को खुश्की से ख़त्म करना है और खुश्की को गर्मी से ख़त्म करना है और गर्मी को तरी से ख़त्म करना है। तो चूँकि यहाँ पर जो दमा है वो तरी का है तो इसलिए हम इसको खुश्की से ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए बहुत से बास डॉक्टर हज़रात जिनको इल्म नहीं होता इस बारे में कि मिजाज उसका असल में है क्या, तो फिर वो दवाई तो देते हैं, खुश्क दवाई देते हैं, लेकिन अचार वगैरह खाने से मना कर देते हैं, ठीक है। ये तो ज़रा सा जुल्म है कि आपने दवाई तो उसको खुश्क दी है, तो
यानी तरफल ज़बानी जो आपने आंवला, बहीरा और हिरड़ का मजमुआ है, खुश्की तेज़ाब का मजमुआ है, तो आपने वो दवाई तो दी है लेकिन आपने खट्टी चीज़ें बंद कर दी है, तो ये ज़रा सा जुल्म है। इसमें इलाज खुश्क चीज़ें दी जाए, ठीक है, खुश्क चीज़ें मरीज़ को दी जाएं, तो इंशाल्लाह इस खुश्क चीज़ों के और खुश्क दवाई के इस्तेमाल से अल्लाह पाक उसको जो असाबी ठंडा दमा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए 2 मलयन हमारा है, ठीक है। उसके लिए आंवला 10 ग्राम, करंजवा 10 ग्राम, काली हिरड़ 40 ग्राम और फटकरी सफ़ेद 20 ग्राम, ठीक है। अब फटकरी जो सफ़ेद होती है इसको थोड़ा सा खिल कर लेना आपने। हमने बार बार वीडियो में बताया है कि खिल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये थोड़ी सी अलकली होती है तो इसके काटने का ख़तरा होता है। तो आप इसको तवे पर रखें, तवे पर रखने के बाद नीचे आग जलाएं और आग जलाने तक जो थोड़ा सा तवा गर्म हो जाए तो ये जो फटकरी होगी सफ़ेद, इसमें खुद ब खुद थोड़ी सी पतली हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे 1-2 मिनट गुजरेगा तो आप इसको हिलाएंगे चमचे के ज़रिए, तो जब ये मुकम्मल तौर पर सख्त हो जाएगी यानी इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा, तो उसको कहते हैं कि फटकरी को खिल करना, ठीक है। अब ये खिल हो गई तो आपने दोबारा नोट फरमा ले, आंवला करंजवा 10-10 ग्राम लेना है आपने, काली हिरड़ 40 ग्राम और फटकरी सफ़ेद खिल की हुई 20 ग्राम। 3 टाइम आपने सफ़ू बनाने के बाद 3 टाइम आधा आधा चम्मच आपने इस्तेमाल करना है। इससे क्या होगा नुस्खे से, इससे बलगम पुख्ता हो जाएगी, बलगम जो है वो पुख्ता हो जाएगी, यानी बलगम ज़्यादा आएगी असाबी मसाज में, तो बलगम सख्त होगी और पकेगी, ठीक है, पक जाएगी। और जब बलगम तो जब बलगम पक जाए तो इसके लिए फिर 4 मुलयन दे, सुरख राई 10 ग्राम, तेज़पात 10 ग्राम, अजवाइन देसी 10 ग्राम, गंधक आंवला सार 30 ग्राम। सबसे पहले हमारा मकसद है बलगम को पकाना, यानी असाबी मिजाज में बलगम ज़्यादा आएगी। असाबी यानी ठंडा जिसको दमा होगा, ठंडे मिजाज वाला दमा, तो उसमें बलगम ज़्यादा आएगी। तो उसके लिए आपने सबसे पहले बलगम को पकाना है, जो हमारा हमने 2 मुलयन आपको बताया है, उससे बलगम पकेगी और फिर आपने इस बलगम को खारिज करना है। उसके लिए सुरख राई, तेज़पात, अजवाइन और गंधक आंवला सार, ये मैंने नुस्खा बता दिया है, ठीक है। तो ये भी आधा आधा चम्मच आप दें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आप देखेंगे कि चंद दिन के इस्तेमाल से जो आपका ये दमा है, असाबी दमा है, ये बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इसके साथ ही आपने, अगर आपको ठंडा दमा है तो आपने ठंडी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। और अगर आपको खुश्की वाला दमा है तो आपने खुश्की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपको गर्म दमा है तो आपने गर्म चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। इसका मैं आपको ग़िज़ाई चार्ट दे दूंगा, उसमें आप देख सकते हैं, मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब हमारे पास एक कानून में बड़ी एमरजेंसी की सहूलत भी मौजूद है। अगर किसी को दमा हो गया है और उसको सांस ही नहीं आ रहा, सांस बहाल ही नहीं हो रहा, तो फिर आपने अज़राकी मुदब्बर लेना है। अज़राकी मुदब्बर तो इसको एक वज़न के मुताबिक भी आपने देना है, ठीक है। मसलन मैंने पहले अर्ज़ की है कि वज़न अगर इसका 1.5 मन है तो आपने 500 मिली वाला कैप्सूल, अगर 100 ग्राम है तो 1000 मिली वाला कैप्सूल देना है अज़राकी मुदब्बर का। तो आप देखेंगे कि जैसे ही अज़राकी मुदब्बर दिए तो फ़ौरन उसका सांस बहाल हो जाएगा अल्लाह पाक के फजल करम से। उसके अलावा जिसकी बलगम जमी हुई है, खारिज नहीं हो रही, तो उसको आपने छोटा सा नुस्खा आप समात फरमा लें। बादाम की गिरी के 2 दाने, मनक्का जिसके अंदर बीज होते हैं, ठीक है, 6 दाने दे दे, दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा ले ले और ठीक है, ये इन तीनों चीज़ों को मुंह में रखे तो अल्लाह पाक के फजल करम से बली जो जमी हुई बलगम है वो खारिज हो जाएगी। अब आग के दूध को बरगे मदार भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा अज़राकी मुदब्बर जो होता है ये आपको आसानी के साथ किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। कुचला मुदब्बर भी इसको कहते हैं और कुश्ता कुचला भी इसको कहते हैं, ठीक है। आखिर में गुजारिश यही है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जी अस्सलाम वालेकुम।